Good morning and Jai Hind, dear students. Welcome to class of Geography. Dear students, today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is India Climatic Conditions. In this chapter we will read about India's climatic conditions. So it is my humble request to each and everyone, please open your book, chapter number 9, and the chapter is India Climatic Conditions. And it is my humble request that please be attentive during class. So let's start chapter number 9, and the chapter is India Climatic Conditions. So dear students, India Climatic Conditions, chapter number 9, Geography. We are going to start. Look, the physical features and the climatic conditions are the two most important factors which influence the life of the people. You have to keep it in your mind that there are two most important factors on which the life of the people depend. Those are the physical features and the climatic conditions. These are the two most important factors. क्या क्या? एक तो फिजिकल फीचर्स और दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस. ये दो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो पीपल के लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो द टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट आर, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट climatic conditions. So the two important elements of climate are temperature and rainfall. Physical features के बारे में we have already discussed in last chapter. Last chapter में हम लोगों ने physical features के बारे में डिटेल में डिस्कस किया. इस चैप्टर में we are going to discuss about the climate or climatic conditions of your country. So the two important elements of climate are temperature and rainfall. Temperature और rainfall climate के सबसे important elements हैं. Okay? Then in India there is a great variation in temperature and rainfall, not only from season to season but also from region to region and year to year. देखो, अगर टेम्परेचर की बात करें और रेनफॉल की बात करें इंडिया में तो बहुत वेरिएशन है, ग्रेट वेरिएशन है. और ये केवल सीजन टू सीजन वेरिएशन नहीं है, ये वेरिएशन रीजन टू रीजन भी है, ये वेरिएशन ईयर टू ईयर भी है. आपने सुना होगा कि किसी सीजन में बहुत ज्यादा बरसात हुई, किसी सीजन में नहीं हुई. और इवन आपने ये भी सुना होगा that particular region is getting more rainfall than other one. Even about temperature, that is the same. Even year to year it is also many variations in temperature and rainfall. Year by year to year, region to region and season to season. तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है टेम्परेचर में और रेनफॉल में. तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन एक्सपीरियंसेस द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. अगर आपसे पूछे कोई कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, देन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज द ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप. इंडिया का क्लाइमेट वो ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप का है. ठीक है, तो क्या क्या समझा हमने? देयर इज ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन इंडिया, एंड दैट इज बाय सीजन टू सीजन, रीजन टू रीजन एंड बाय ईयर टू ईयर. And Indian experiences the tropical monsoon type of
climate. After that, अब कैसे वेरिएशन है, तो मैं बता रहा हूं टेम्परेचर में और रेनफॉल में कैसे वेरिएशन है, that I am going to tell you. So during the summer season, the temperature may rise 50 degrees Celsius in Rajasthan desert, while it is as low as minus 40 degrees Celsius in Leh in winter season. समर सीजन में इंडिया में अगर राजस्थान डेजर्ट की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, टू हॉट। एंड अगर लेह की बात करें, विंटर सीजन की बात करें, तो इट डाउन एज -40 डिग्री सेल्सियस। Just try to imagine, and there is difference between Rajasthan desert in summer temperature in summer season of the Rajasthan desert and temperature in winter season of Leh. So there is 90 degrees Celsius difference in these two. 50 degrees Celsius in Rajasthan desert in summer season and -40 degrees Celsius in Leh in winter season. कितना वेरिएशन है। अब बात करें रेनफॉल की, तो the annual rainfall in Rajasthan desert is less than 10 centimeter, while it exceeds 500 centimeter in Meghalaya. अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें कि पूरे एक साल में कितनी बरसात होती है, तो राजस्थान डेजर्ट में 10 सेंटीमीटर से भी कम पूरे साल, एनुअल एक साल में। And if you will compare it to Meghalaya, the other state, where it exceeds 500 centimeter. So just see that what is the difference here. Rajasthan desert less than 10 centimeter, while Meghalaya more than 500 centimeter. कितना वेरिएशन है। तो आपने देखा कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल, इसमें कितना वेरिएशन है, रीजन टू रीजन एंड सीजन टू सीजन। आफ्टर दैट, a part of location, shape and size of India, the physical features also play an important role in determining the climate. इंडिया का जो फिजिकल फीचर्स है वो इसके लोकेशन, इसके शेप और इसके साइज, इसको तो डिटरमाइन करता ही है, लेकिन साथ साथ इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. So apart from location, shape and size of India, the physical features also play an important role in determining the climate. So the following factor influence the climate conditions in India. अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करती हैं. And we will discuss about those factors which influence the climate conditions in India. So the first is location. Okay, so the Tropic of Cancer, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं वो इमेजिनरी लाइन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट डिवाइड्स इंडिया इन ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स. जैसे पूरे अर्थ को इक्वेटर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसी तरह से आपके कंट्री को, इंडिया को, वो जो लाइन है इमेजिनरी, दैट इज नेम्ड एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है. द सदर्न पार्ट इज इन द ट्रॉपिकल जोन while the northern part is in the subtropical zone. तो जो इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसका जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल जोन में आता है.
Clear? So that imaginary line is Tropic of Cancer, which divides India in almost two equal parts. Southern part is in tropical zone, while northern part is in subtropical zone. Therefore, the temperature remains high throughout the summer season. इसीलिए पूरे समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, ज्यादा रहता है. Moreover, the Himalayan ranges do not permit the cold winds coming from Central Asia to enter India. और क्या होता है, जो हिमालयन रेंजेस हैं, जो हिमालय रेंज है इंडिया में, या जो हिमालयन रेंजेस है, वो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आते हैं ना, उसको इंडिया में इंटर नहीं होने देता. वो बैरियर की तरह से काम करता है. क्लियर? तो जो कोल्ड विंड्स सेंट्रल एशिया से आते हैं, वो हिमालयन रेंजेस की वजह से वो इंडिया में इंटर नहीं कर पाते. अगर वो इंडिया में इंटर कर जाए तो पूरा जो क्लाइमेट है वो बिल्कुल कूल हो जाएगा. बट बिकॉज ऑफ द हिमालयन रेंजेस दे डू नॉट परमिट द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू इंटर इंडिया. ओके, आफ्टर दैट the next one is the relief features. The temperature decreases with increase in altitude. देखो, जब आप हाइट पे जाओगे, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे, तो टेम्परेचर विल डिक्रीज. टेम्परेचर जो है, सॉरी, द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. आई वांट टू से दैट अगर आप जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाओगे, वो एल्टीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा. ठीक है? सो वी कैन से द टेम्परेचर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. इसीलिए द टेम्परेचर इज लो ड्यूरिंग द समर सीजन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज. और यही रीजन है कि हिमालयाज के बहुत सारे पार्ट्स में जब आप समर में जाओ तो वहां पे टेम्परेचर कम होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, टेम्परेचर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा. क्लियर? Although Tamil Nadu is close to the equator, the hill stations such as Kodaikanal and Udagmandalam enjoy cool climate. वैसे तमिलनाडु जो है वो इक्वेटर के क्लोज में है, लेकिन हिल स्टेशन जैसे कि कोडाईकनाल या उदगमंडलम, वहां का जो क्लाइमेट है वो कूल है. ठीक है? सो द नॉर्दर्न प्लेन्स रिमेन्स वेरी हॉट ड्यूरिंग दिस टाइम. लेकिन अगर उसी समय नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो दे रिमेन वेरी हॉट. वो बहुत गर्म रहता है वो एरिया. बट Tamil Nadu, which is close to equator, then also the hill stations like Kodaikanal and Udagmandalam, they enjoy cool climate there. After that, distance from the sea. देखो, the water bodies around peninsular India exert a moderating influence on the climatic conditions of the coastal areas. जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया जो कि 3 साइड से वाटर से सराउंडेड है. 1 साइड अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. तो ये जो पेनिनसुलर इंडिया है, विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, दोज वाटर बॉडीज इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द कोस्टल एरिया. और वो जो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है, ना बहुत ज्यादा कोल्ड इन विंटर सीजन और ना ही बहुत ज्यादा हॉट इन समर सीजन. एक मॉडरेट क्लाइमेट बनाता है कोस्टल एरियाज का. सो कोस्टल एरियाज एंजॉय एन इक्वेबल क्लाइमेट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर. तो ये जितने भी कोस्टल एरियाज है ना, दे एंजॉय इक्वेबल क्लाइमेट पूरे साल. लेकिन अगर इंटीरियर प्लेसेस की बात करिए तो हम लोगों ने बात किया कोस्टल एरियाज की. कोस्टल एरियाज में मॉडरेट क्लाइमेट है, इक्वेबल क्लाइमेट है, यानी विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी नहीं और समर में बहुत ज्यादा गर्मी नहीं. बट when you will enter in interior part of the country, there the climate is extreme.
So places in the interior experience an extreme climate. For example, the northern plains experience very hot summers and very cold winters. तो जितने भी इंटीरियर पार्ट्स हैं कंट्री के, वहां का क्लाइमेट एक्सट्रीम है. कोस्टल एरियाज का क्लाइमेट इक्वेबल है या मॉडरेट है. यहां पर एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब वेरी हॉट समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स. समर में बहुत ज्यादा गर्मी एंड विंटर में बहुत ज्यादा ठंडी. क्लियर? एंड द एग्जांपल इज द नॉर्दर्न प्लेन्स. These plains experience very hot summers and very cold winters. Now, the cycle of seasons. अब हम लोग बात कर रहे हैं साइकिल ऑफ सीजन्स की. So the variation in temperature, amount and distribution of rainfall and the monsoon winds cause 4 distinct seasons in our country. देखो हमारे कंट्री में 4 सीजन्स हैं, 4 distinct season. And why? Because of the variation in temperature, amount and distribution of rainfall and the monsoon winds. These cause 4 distinct seasons in India. They occur in a fixed sequence to form an annual cycle of season. वो एक फिक्स्ड सीक्वेंस में आते हैं, है ना, और वही एक एनुअल साइकिल बनाते हैं सीजन का इंडिया में. So we are having 4 distinct seasons and they occur in a fixed sequence to form an annual cycle of seasons. तो देखें वो कौन कौन से सीजन हैं. So the 4 seasons are as under. The first is the cold winter season, which is commonly known as winter. Second one is the hot weather season, which is known as summer. Then the southwest monsoon season. Southwest monsoon season, which is also known as rainy season, and the season of retreating monsoon, which is known as autumn. Clear? So we are having 4 distinct seasons. कौन कौन से? अगर वेरी शॉर्ट कहें तो विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम. और if we talk like the cold weather season, winter, the hot weather season, summer, the southwest monsoon season, rainy season, and the season of retreating monsoon, that is known as autumn. So we are having 4 distinct season in our country. अगर आपसे पूछे कि हमारे कंट्री में कितने सीजन्स आते हैं, तो they are 4: winter, summer, rainy and autumn. Okay, after that, तो अब हम लोग पहला सीजन डिस्कस करेंगे आज, द कोल्ड वेदर सीजन, which is also known as winter. So now we are going to discuss about the cold weather season, which is also known as winter season, commonly known as winter season. So the cold weather season starts from mid of November and continues till mid of March. विंटर सीजन कब से स्टार्ट होता है? तो मिडिल ऑफ नवंबर से लेकर मिड ऑफ मार्च तक. तो मिड ऑफ नवंबर से मिड ऑफ मार्च तक का जो टाइम है, दैट इज द कोल्ड वेदर सीजन, और यू कैन से दैट इज द टाइम ऑफ विंटर सीजन, है ना. अभी देखो, अभी हम लोग विंटर सीजन में ही है. ओके. द टेम्परेचर इज जनरली लो एंड डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ठीक है ना. तो आप जब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. क्लियर? द डेज आर जनरली वार्म व्हाइल नाइट्स आर कोल्ड. जो डेज हैं वो जनरली वार्म होते हैं, लेकिन नाइट्स जो है वो कोल्ड हो जाते हैं. और अगर कोल्डेस्ट मंथ्स की बात करें, सबसे ठंडे मंथ्स कौन से हैं, कोल्डेस्ट मंथ कौन से हैं, तो दे आर जनवरी एंड फेब्रुवरी.
So January and February are the coldest months in many parts of India. इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में जनवरी और फरवरी जो है ये कोल्डेस्ट मंथ्स हैं. तो मैंने क्या क्या बताया? लाइक द कोल्ड वेदर सीजन स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल द मिडिल ऑफ मार्च. ठीक है. अगर इफ यू विल मूव टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ तो द टेम्परेचर विल decreases or temperature will decrease. Days are warmer while nights are cold and January and February are the coldest months in many parts of India. After that, a major part of India remains dry during the winter season. इंडिया का जो बड़ा पार्ट है ना उसमें कोई रेन नहीं होता, वो ड्राई रहता है विंटर सीजन में. The northeast monsoon after passing over the Bay of Bengal bring rain to the Coromandel coast in Tamil Nadu. लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है जब वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर से पास करते हैं तो अपने साथ मॉइस्चर ले आते हैं और वो तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट में रेन कराते हैं विंटर सीजन में. ये आपको याद रखना है. ठीक है. कहां पे विंटर सीजन में कौन सा एरिया इंडिया का जो है वो ड्राई नहीं रहता? तो वो है कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड्स आफ्टर पासिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल दे ब्रिंग रेन टू दिस एरिया. द कोल्ड वेदर सीजन इज जनरली प्लेजेंट with clear skies, low temperature, low humidity and cool winds. ये जो कोल्ड वेदर सीजन है ना वो जनरली प्लेजेंट होता है. स्काईज क्लियर होते हैं. ठीक है ना. बहुत ज्यादा रेन की संभावना नहीं होती. टेम्परेचर लो होता है. ह्यूमिडिटी इज लो एंड विंड्स आर कूल. सो ओवरऑल द कोल्ड वेदर सीजन इज जनरली प्लेजेंट. बहुत सुहावना मौसम होता है. ओके. The cyclones coming from Mediterranean Sea cause light rainfall in the plains and snowfall in the Himalayas. ये जो साइक्लोन्स है ना जो मेडिटेरेनियन सी से आते हैं वो हल्की रेनफॉल कराते हैं इंडिया के प्लेन्स में और हिमालयाज में स्नोफॉल कराते हैं. That you have to keep it in your mind. So the cyclones coming from Mediterranean Sea cause light rainfall in the plains and snowfall in the Himalayas. This is followed by very cold weather conditions and widespread fog. और इसके साथ साथ क्या होता है कि वेदर कंडीशन बहुत कोल्ड हो जाता है और वाइड स्प्रेड फॉग हो जाता है इन एरियाज में. ठीक है. सो आई एम वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग दैट द साइक्लोन्स कमिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी cause light rainfall in the plains and snowfall in the Himalayas, and this is followed by very cold weather sea conditions and widespread fog. So dear students, that's all for today. Today we have mainly discussed about climatic conditions of India. We discussed that how is the temperature and rainfalls condition in India. Then we discussed about 4 distinct seasons, and today we discussed about first season, which is the winter season, cold weather season. So that's all for today. When we will meet in next class, I will discuss about the other topics of the chapter. Till then, please read all the topics carefully and wait for next class. Thank you and have a nice day.